आवाज येते का मॅडम? क्षितिजा मॅम? हा सर, सॉरी सर, मी म्यूटवर होते. आवाज येतोय? येत आहे ना आवाज? ओके मॅम, आपण स्टार्ट हो, करूया. स्टुडंट तेव्हापर्यंत जॉईन करतात मॅडम. ओके, स्क्रीन चालेल शेअर सर, होता मॅडम चालेल. माझी? हा, दिसतंय. Okay. So good morning, all of you. I am Professor A.B. Ahsan. It's give me a great pleasure to introduce today's estimated speaker of our webinar on a fundamental of pharmacovigilance and career pathway. It's Miss Kshitija Neeraj Chaudhary. Miss Kshitija Chaudhary is a highly experienced professional in the field of pharmacovigilance and drug safety. She hold in pharmacy in a pharmacology from Vadvani College of Pharmacy, Yatmal under the Amravati University. And with over decades of experience in the pharmaceutical and clinical research industry, Ms. Chaudhary has worked with the reputed organizations such as Tata Consultancy Services and Cognizant Technology Services, where she contributed the extensively as a drug safety associate and senior process associate in a various pharmacovigilance role, including case processing and regulatory compliance and quality control. Currently, she serves as a head trainer at a MAP PV Consultancy Nagpur, where she lead and design a comprehensive pharmacovigilance training program for pharmacy and life sciences graduated. Her works focus on the bridge the gap between the academic learning and and uh, bridge the gap between the academic learning and industry requirement through the interactive session on ICSR processing, aggregate reporting, signal detection, and global regulatory guideline. And she has also conducted numerous successful training programs at a Rainbow Clinical Research and Management Institute, Nagpur, receiving excellent feedback from a participant for her clarity, engagement, and real-world insight. And throughout her career, she has received multiple awards, including the Spotlight Award, Star Team of the Month, and Excellent Performance Award for her dedication and excellence in the pharmacovigilance operation. We are honored to have her with us today to share her expertise on the fundamental of pharmacovigilance and guide us through the diverse career opportunity in a dynamic and rapidly growing field. Thank you so much. Please continue, Kshitija ma'am. Yeah. Hello, good morning all. And thank you, sir. Thank you. Such a wonderful introduction. It's really my pleasure, sir, कि Thank you. आप लोगों ने इतना सब हार्ड वर्क करके सब मेरे साथ कम्युनिकेशन करके ये सेमिनार सेटअप किया है. थैंक्स टू ऑल आवर प्रिंसिपल सर, आवर मैनेजिंग कमिटी, आवर डायरेक्टर सर, कि मुझे स्टूडेंट के साथ इंट्रोडक्शन करने के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है. आई एम रियली थैंकफुल एंड आई एम रियली वेटिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. सो अभी हम फार्माको विजिलेंस के बारे में तो इंट्रोडक्शन करेंगे, बट उससे पहले मैं स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन करना चाहती हूँ. जो भी लोग अ, अपना अनम्यूट करके बोल सकते हैं या चैट पे भी आप रिप्लाई कर सकते हैं. सो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कि एवरीवन नोज अबाउट दी फार्माको विजिलेंस. आपके सिलेबस में है? आप लोग क्या जानते हो फार्माको विजिलेंस के बारे में? Yes, all students unmute yourself and get the answer from ma'am. Anyone knows about the pharmacovigilance? Pharmacovigilance is the study of ADR reports. यस, करेक्ट. इसके अलावा और कोई बोलना चाहेगा? करेक्ट है आंसर. गौरव, समीक्षा, आनंद, कोई अनदर आंसर, कोई डिफरेंट आंसर? वेरी गुड गौरी. अगर किसी के पास कुछ डिफरेंट आंसर है तो प्लीज लेट मी नो. मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोगों को फार्माकोविजिलेंस के बारे में क्या पता है. रेस तो हम सेमिनार में कवर करेंगे ही.
ओके, पूरी तरह से साइलेंस है। सो लेट्स बिगिन विद दी सम एग्जाम्पल। देखो, कॉक्स 1 कॉक्स 2 के बारे में आपने सुना होगा। ओके, ये जो इन एंजाइम्स है, इनहिबिटर्स है, व्हेन वी टेक दी एनी एंटीबायोटिक, एनएसआईडी जैसे हम लेते हैं, कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 क्या करते हैं? कॉक्स 1 जो है, कॉक्स 1 हमारे बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस करते हैं, राइट? और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं? हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन फॉर्म करते हैं इंटेस्टाइन में, प्रोटेक्ट करते हैं, राइट? बट जब हम एनएसआईडी ड्रग लेते हैं, दैट टाइम व्हाट हैपेंस? अगर किसी को समझो आर्थराइटिस से पेन हो रहा है, एनी पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम जॉइंट पेन, तो एनएसआईडी से समझो फीवर है, जॉइंट पेन है, वो पेन है, इन्फ्लेमेशन है, वो तो रिड्यूस होता है, बट सेम टाइम पे कॉक्स का एक्शन जो है बॉडी में इनहिबिट होता है, वो ब्लॉक हो जाता है, राइट? अगर ये ब्लॉक हो जाता है, राइट, तो दैट टाइम जो हमारा म्यूकस लाइनिंग का सिंथेसिस है, प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस है, वो भी बॉडी में स्टॉप हो जाता है, राइट? यहाँ पे एक चीज तो करेक्ट हो रही है कि पेशेंट को जॉइंट पेन से या फीवर से या जो भी पेन रिलेटेड है, इन्फ्लेमेशन है, वो सिम्टम्स से उसको रिलीफ मिल रहा है। बट सेम टाइम अगर ये सिंथेसिस कॉक्स 1 कॉक्स 2 का ब्लॉक हो जाता है, तो दैट टाइम पेशेंट को जो बर्निंग सेंसेशंस है, एसिडिटी का फीलिंग है, वो सडनली बढ़ जाता है। मतलब एक चीज ठीक हो रहा है बट सडनली दूसरा चीज हो रहा है। तो पीवी में यही फाइंड आउट किया जाता है कि why this is happened, right? मेडिसिन अगर हम हमारी डिसीज क्योर करने के लिए ले रहे हैं, तो पेशेंट को कंप्लीटली रिलीफ होना चाहिए, ना कि उसको मेडिसिन के वजह से रिस्क होना चाहिए, राइट? तो ये तो प्रूवन थ्योरी है कि एनएसएआईडी कॉक्स 1 कॉक्स 2 को ब्लॉक करते हैं, और दैट टाइम पीजी ब्लॉक्ड होने से म्यूकस लाइनिंग सिंथेसिस वो जो फॉर्म नहीं होता है, उसके वजह से बर्निंग सेंसेशन होता है। बट पीवी में सेम टाइम पे जो लेटेस्ट थेरीज है, डे टू डे पेशेंट के एक्सपीरियंस है, उसके ऊपर काम किया जाता है। से वेरियस डिफरेंट सोर्स से इंफॉर्मेशन गैदर किया जाता है, जैसे कि लिटरेचर सोर्स है, मीडियाज है, एवरीडे पीवी में जो सारी कंप्लेंट्स आते हैं हमारे पास पेशेंट से, और बहुत सारे सोर्स से रिपोर्ट कलेक्ट किए जाते हैं, एंड उसके ऊपर स्टडी किया जाता है कि how we can reduce the side effects, how we can enhance the beneficial of effect of medicine। इसके ऊपर पीवी काम करता है। जो प्रूवन थेरीज है वो तो सबको ही पता है, बट डे टू डे लाइफ में जो एक्सपीरियंस पेशेंट को आते हैं, उसके ऊपर भी काम करना जरूरी है। बिकॉज देखो, रिसर्च टीम जो है, इन्वेंशन होता है, और एवरी डे न्यू मेडिसिन, न्यू मॉइटी हमारे पास आती है, राइट? सिंथेसिस ये होते ही रहता है, रिसर्चर्स गोइंग ऑन, और मेडिसिन का इन्वेंशन जो है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो मार्केट में आ रहे हैं। स्टिल ऐसे कुछ डिसीजेस हैं कि जिसके ऊपर अभी भी मेडिसिन नहीं है, एंड मेडिसिन नहीं है, उसके वजह से ट्रीटमेंट नहीं होता है, पेशेंट को हार्म होता है। सो वंस द मेडिसिन्स आर देयर, सो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वो मेडिसिन को सेफली कैसे यूज करें, पेशेंट का जो रिस्क है, राइट, वो कैसे कम करें, और बेनिफिशियल इफेक्ट कैसे बढ़ाए। सो दिस इज अबाउट दी पीवी, ये शॉर्ट में हमने देखा। सो लेट्स क्विकली इंट्रोड्यूस आवर सेमिनार। आई विल शेयर माय पीपीटी। सो जस्ट कंफर्म, आपको आप लोगों को पीपीटी विजिबल है या नहीं? Yes, ma'am. Is it visible? ओके, मेरी आवाज एकदम क्लियर है? कोई ब्रेक हो रहा है, कोई इश्यू आ रहा है? No, ma'am. Okay, okay. So once again, I am thankful to all principal sir, Ehsan sir, Shubham Kokate sir, who are taking efforts for arranging this seminar. And we will start with the seminar, and just I will quickly introduce myself. सर ने तो इंट्रोडक्शन कर ही दिया है अच्छे से,
but again, we will quickly introduce myself. Ma'am, you are not audible, ma'am. No, ma'am, your mic is off. हेलो, हाँ सर, Yes, अभी ma'am. आ रही है आवाज? No, okay, ओके okay, now audible. ओके सर. So when I joined TCS, I was a fresher, and I have worked in a TCS for 1.8 one year 8 months. And in TCS, I have worked as a case processing associate. Later on, I moved to the Cognizant Technology Solutions. In Cognizant Technology CTS, I have worked in a different team, worked with a different client, and बहुत कुछ वहाँ पे मुझे सीखने को मिला. It was a really good experience कि मैंने Cognizant में जो काम किया. And after that, I have joined Rainbow Clinical Research Team. So वहाँ पे मुझे एज अ फार्माकोविजिलेंस ट्रेनर का मैंने काम किया. एंड अभी मेरा खुद का एक कंसल्टेंसी है, मैं जहाँ पे खुद ही ट्रेनर एज अ हेड ट्रेनर वर्क कर रही हूँ. दैट इज अ मैप कंसल्टेंसी. ओके, एंड यहाँ पे हम एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग में प्रोवाइड कर रही हूँ, एंड जो कि रियल लाइफ इंडस्ट्री वर्ल्ड में आप लोगों को टीवी के बारे में वहां पे नॉलेज मिले और आप आपका एक करियर शुरुआत कर सके. सो अभी हम स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक डेफिनेशन से कि व्हाट इज एडवर्स इवेंट. ओके, सो व्हाट इज एडवर्स इवेंट? एडवर्स इवेंट इज नथिंग बट द मेडिकल अकरेंस इन अ पेशेंट given a medicine and not necessarily caused by the drug. So यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कंफर्म नहीं है कि पेशेंट ने मेडिसिन लिया है एंड उसके वजह से ही पेशेंट को adverse event experience हुआ है. If some patient is taking any painkiller drug and after that he is experiencing nausea, but it is not clear whether the patient is experiencing nausea due to that drug, right? So it is not clear. Or if any patient is receiving any treatment, antibiotic treatment, and he is experiencing rash, तो यहाँ पे ये प्रूवन नहीं है, ये क्लियर नहीं है, हमारे पास ये इन्फो नहीं है कि वेदर पेशेंट को मेडिसिन के वजह से ही जो है एडवर्स इवेंट हो रहे हैं. सो दिस इज द एडवर्स इवेंट कि यहाँ पे क्लियर कॉजल रिलेशनशिप नहीं है. सो नेक्स्ट इज सीरियस एडवर्स इवेंट. तो सीरियस एडवर्स इवेंट मीन्स नाम से ही रिफ्लेक्ट हो रहा है कि इट इज सीरियस व्हेन एनीथिंग इज सीरियस, कि जो पेशेंट के लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, इट इज सीरियस. सो इट मे बी उसके डिफरेंट क्राइटेरियाज है. व्हाट आर दैट? की रिजल्ट इन दैट और पेशेंट का लाइफ जो है थ्रेटनिंग है, राइट, रिस्क में है, डेंजर में है, और patient requires hospitalization or sometimes it may prolong, sometimes permanent damage or disability is there, sometimes birth defects are there, और medically significant condition जो है emergency room में patient को मतलब रिक्वायरमेंट हो सकता है. दीज आर द सम क्राइटेरियाज फॉर द सीरियस एडवर्स इवेंट. सो एनी अनटूवर्ड मेडिकल occurrence is there, and if patient is serious criteria is fallen down into between these 6 criteria, then that time we will called as a serious adverse event. अगर किसी adverse event के वजह से पेशेंट का डेथ हो रहा है, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो रहा है, पेशेंट का लाइफ जो है रिस्क में हो रहा है, देन
that situation we will call as serious adverse event. So उसके एग्जाम्पल से हार्ट अटैक और समटाइम्स सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हुआ है पेशेंट को एंड ड्यू कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ just 1 minute. Yes, स्क्रीन सबको विजिबल है? Am I audible to all? Yes, ma'am, you are audible. Okay, thank you, sir. So these are the different example for the adverse drug reaction, sorry, adverse event and serious adverse event. So these are the basic difference. हम यहाँ पे compare करेंगे कि ए जो है दैट इज एडवर्स इवेंट की वजह से पेशेंट को उतना रिस्क नहीं हो रहा है या पेशेंट की लाइफ पे इम्पैक्ट नहीं हो रहा है जैसे कि सीरियस एडवर्स इवेंट से हो रहा है। पेशेंट का लाइफ जो है यहाँ पे डेंजर में शो कर रहा है ड्यू टू दिस एडवर्स इवेंट। पेशेंट का जो है परमानेंट डैमेज हो सकता है, मेडिकली सिग्निफिकेंट कंडीशन हो सकता है, समटाइम्स डेथ ऑल्सो। एंड ए के वजह से जो है हॉस्पिटलाइजेशन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, बट समटाइम्स यहाँ पे एसई के वजह से हॉस्पिटलाइजेशन का रिक्वायर्ड जरूरी है या प्रोलॉन्ग भी होता है। सी दिस एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल से आपको ध्यान में आएगा कि रैश एंटी, ये रैश है या नौशिया ही है, हम घर पे क्योर कर सकते हैं, इसके लिए मेडिसिन लेके वो ट्रीट हो सकता है एट द सेम टाइम। बट वंस द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एनी हार्ट अटैक और वेरियस अदर कंडीशंस की जिसके वजह से पेशेंट का लाइफ रिस्क में हो रहा है, तो दैट टाइम हॉस्पिटलाइजेशन इज नीडेड। और few examples are mild headache, rash for the AE, and for the SAE there is a stroke, death, or sometimes organ failure also belongs to the serious adverse event. So next is what are the adverse drug reaction? So adverse drug reaction are unintended and unpleasant reaction, and it is caused due to the medication, and there is a causal relationship between medication and adverse drug reaction. So ये proven है कि medicines के वजह से ही ADR हो रहा है। Means जैसे हमने A में देखा कि वहां पे we don't know कि this condition is due to एग्जैक्टली ड्यू टू दैट मेडिकेशन और पेशेंट का कोई फिजियोलॉजिकल कंडीशन है या पेशेंट का उसके साथ में कोई ट्रीटमेंट ले रहा है ड्यू टू दैट कंडीशन है। बट यहाँ पे इट इज क्लियर कि एडीआर इज ओनली हैपन ड्यू टू कि यहाँ पे कॉजल रिलेशनशिप है बिटवीन मेडिकेशन एंड एडीआर। सो एडीआर जो है पोस्ट मार्केट फेज में भी हैपन हो सकता है एंड प्री मार्केट फेज में। तो ये डिफरेंट फेजेस क्या हो सकते हैं वो हम आगे वाली स्लाइड में क्लियरली देखेंगे। पोस्ट मार्केट मीन्स जहाँ पे मेडिसिन जो है वो मार्केट में आ चुके हैं, एंड प्री मार्केट मीन्स हम बोल सकते हैं कि जब मेडिसिन जो होते हैं वो ट्रायल के दौरान होते हैं या जहाँ पे उनका टेस्टिंग चल रहा है, राइट? सो दैट इज प्री मार्केट फेज। सो एज पर दी WHO, ADR is defined as a response to a drug which is noxious and unintended and which occurs at dose normally used in man for prophylaxis, diagnosis, or therapy of disease or for the modification of physiological function. So, हम अगर मेडिसिन को प्रोफिलैक्सिस के लिए, डायग्नोसिस के लिए या डिसीज क्योर करने के लिए एज अ थेरेपी ऑफ डिसीज यूज कर रहे हैं एट अ नॉर्मल डोज एंड पेशेंट को अगर अनइंटेंडेड नॉक्सियस रिस्पॉन्स हो रहा है एंड इट इज क्लियर कि वो मेडिसिन के वजह से हो रहा है, देन दैट टाइम वी विल कॉल्ड एज दैट रिस्पॉन्स एज अ ADR।
यहाँ तक सबको समझ में आया है? किसी को कुछ डाउट है? बिकॉज इट इज बेसिक। इसमें कोई भी डाउट है, सिंपल क्वेरी है तो यू कैन आस्क। एनी डिफिकल्टी, एनी डाउट? नेक्स्ट स्लाइड की ओर जा सकते हैं। आप लोग जब तक रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, बोलोगे नहीं, मुझे नहीं समझ में आएगा कि आप लोगों को समझा है या नहीं समझा है। So unmute yourself. Yes, students, unmute yourself. Yes, student response in chat box. ओके, ओके, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। वी विल मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। सो अभी हमारा जो फार्माकोविजिलेंस है, ये सारा ड्रग, मेडिसिन, साइड इफेक्ट्स, है ना, इसके रिलेटेड है, राइट? तो अभी एडीआर के बाद हम देखेंगे कि व्हाट इज साइड इफेक्ट। So side effect is defined as per the WHO, any unintended effect of a pharmaceutical product occurring at dose normally used in a human which is related to the pharmacological properties of drug. ये एडीआर के जैसे ही थोड़ा डिफरेंट है। नॉर्मल डोज पे ही मेडिसिन यूज हो रहा है, राइट? एंड इट इज रिलेटेड टू द फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग। वहां पे जो तो कॉज रिलेटेड था, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि समझो एक आधी ड्रग का जो फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी है उसकी वजह से हमें वो इफेक्ट मिलता है। समझो एंटीहिस्टामाइन अगर पेशेंट रिसीव कर रहे हैं तो समटाइम्स पेशेंट हैज अ ड्राउजीनेस वाला इफेक्ट। हम कोल्ड कफ के लिए जब भी मेडिसिन लेते हैं तो वो कंटेंट ही ऐसे है, वो मेडिसिन में वो बनाए वैसे गया है कि उसका जो इफेक्ट है साथ में हमें कोल्ड कफ तो क्योर होता है, बट सेम टाइम में हमें ड्रॉजीनेस जो है होता है। सेम टाइम हमने जो एनएसएआईडी का देखा था कि लाइक हमें पेन इन्फ्लेमेशन जो है वो ठीक हो रहा है, बट सेम टाइम हमें जो है स्टमक इरिटेशन है, बर्निंग सेंसेशन है, वो हो रहा है। सो दीज आर दी साइड इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग, कि ये ड्रग के फिजियोलॉजिकल फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज की वजह से हो रहा है, और ना कि ये उसका कॉज है, ना कि ये एडीआर है, बट इट इज अ साइड इफेक्ट। वहां पे एक स्मॉल गैप है। जैसे आप देखो एडीआर भी ड्रग के वजह से हो रहा है, बट वो फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज की वजह से नहीं हो रहा है, वो कॉज ही है वो ड्रग का, इसीलिए वो हो रहा है। एंड साइड इफेक्ट जो है वो ड्रग की प्रॉपर्टीज की वजह से हमें वो इफेक्ट हो रहा है, राइट? सो देयर इज अ स्मॉल गैप। सो नेक्स्ट इज कि व्हाट इज ड्रग डेवलपमेंट के फेजेस क्या है। अभी ये समझना जरूरी क्यों है? बिकॉज वी आर वर्किंग अराउंड द मेडिसिन, वी आर वर्किंग अराउंड द साइड इफेक्ट, एडीआर, राइट, एडवर्स इवेंट, यही सब हम फाइंड आउट कर रहे हैं फार्माकोविजिलेंस में। सो वी हैव नॉलेज अबाउट हाउ द ड्रग इज गोइंग टू बी डेवलप्ड। हमें पता होना चाहिए कि एक ड्रग डेवलपमेंट का फेज कैसे होता है। सो डिटेलली हम आगे की स्लाइड में भी स्टडी करेंगे। मोस्टली यहाँ पे ये 4 फेजेस होते हैं। फर्स्ट इज द प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट। प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट में क्या होता है, एडीएमई पैरामीटर्स जो है लाइक एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, ये स्टडी किए जाते हैं। देन यहाँ पे डोज, रूट है, साइड इफेक्ट्स है, राइट, ये सारा बेसिक रिसर्च यहाँ पे होता है। देन जेंडर वाइज इफेक्ट कैसे मिल रहा है, रेस वाइज इफेक्ट कैसे मिल रहा है, एंड अगेन
वो मेडिसिन का स्टैंडर्ड ड्रग में कंपैरिजन होता है। सो ये सारा यहाँ पे फाइंड आउट किया जाता है। देन एक प्री क्लिनिकल टेस्टिंग हो गया, मीन्स एनिमल मॉडल पे टेस्टिंग हो गया, एंड दे आर श्योर कि अभी हम ह्यूमन ट्रायल्स कंडक्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट फेज इज द क्लिनिकल डेवलपमेंट, दैट इज द ह्यूमन टेस्टिंग। सो अभी क्लिनिकल डेवलपमेंट का जो सारा फेज है हम आगे वाली स्लाइड में डिटेल स्टडी करेंगे। So यहाँ पे phase 1, phase 2 and phase 3. Once the phase 1 is over, they will go for phase 2. phase 2 का रिजल्ट सबमिट हो जाता है and they will ensure कि ओके phase 3 के लिए अभी हम रन कर सकते हैं। then phase 3 कंडक्ट होता है। so then ये सारे ही phases कंप्लीट हो गए। then they will go for a regulatory authority approval. They will submit the preclinical and human testing का result to the FDA. Then FDA will ensure कि whether वो drug का टॉक्सिसिटी कैसा है, एफिकेसी कैसा है, उसका रिस्क बेनिफिट रेशियो कैसा है, वो प्रोफाइल मेंटेन तो है। देन दे विल अप्रूव फॉर द ड्रग एंड नेक्स्ट इज द सर्विलेंस, पोस्ट मार्केट सर्विलेंस, दैट इज द फेज 4। और ये सारा अप्रूवल मिलके हमारा ड्रग जो है मार्केट में अवेलेबल होता है। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द क्लिनिकल ट्रायल फेजेस। तो फेज 1 जो एनिमल टेस्टिंग के बाद सबसे पहला फेज रहेगा, दैट इज द फेज 1। फेज 1 में क्या होता है, सेफ्टी, डोज एंड साइड इफेक्ट का स्टडी होता है। यहाँ पे वेरी स्मॉल नंबर ऑफ वॉलंटियर और समटाइम्स पेशेंट इन्वॉल्व रहते हैं, लाइक 20 to 50, 20 to 80 अप टू 100 यहाँ पे वॉलंटियर्स इन्वॉल्व रहते हैं। और यहाँ पे सेफ डोज रेंज क्या है, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर क्या है, फार्माकोडायनेमिक पैरामीटर्स क्या है, वो स्टडी किए जाते हैं। देन यहाँ पे जो है फेज 1 इज ओवर। फेज 1 में ये सारा रिजल्ट्स हमारे पास आता है। तो फेज 1 का रिजल्ट हमें मिलने के बाद हम फेज 2 के लिए जाएंगे। फेज 2 मेनली फोकस ऑन सेफ्टी एंड एफिकेसी। अभी फेज 2 जो है उसका ड्यूरेशन एज वेल एज वॉलंटियर और यू कैन से पेशेंट यहाँ पे बड़ा रहेगा, थोड़ा फेज 1 से लार्ज स्केल पे ये स्टडी होता है। जैसे यहाँ पे जो है सेफ्टी एंड इफिकेसी उनको देखना है कि अगर हम मिनिमम डोज अगर देते हैं पेशेंट को, समझो, तो उसमें इफिकेसी कैसा है। तो अकॉर्डिंग टू द डोज भी वहां पे वेरियस ग्रुप्स बनाए जाते हैं। समझो इफिकेसी के लिए एक ग्रुप है, सेफ्टी के लिए एक ग्रुप है। अगर उनको इफिकेसी टेस्ट करना है तो दे आर क्रिएटिंग मल्टीपल ग्रुप्स की जहाँ पे कोई पेशेंट 10 mg डोज ले रहे हैं, 20 mg ले रहे हैं, 30 लिए, 40 लिए। और जो पेशेंट 10 mg डोज ले रहा है उसको इफेक्ट कैसे मिल रहा है डिसीज के लिए, एंड जो पेशेंट 40 mg ले रहा है उनको कैसे इफेक्ट मिल रहा है। सो वो डोज का कंपैरिजन करके वो बेस्ट डोज क्या है, सेफ डोज क्या है वो डिसीज के लिए, ये फाइंड आउट करते हैं। वंस अगेन as well as the efficacy, they will same time they will working on the safety, right? मतलब efficacy तो मिल रहा है बट सेफ्टी भी कैसा है। ऐसा ना हो कि 10 mg डोज पे पेशेंट को मतलब कोई रिस्क नहीं है और वंस यू इंक्रीज द डोज, जहाँ पे डोज 30-40 हो रहा है तो पेशेंट को डोज बढ़ाने के वजह से कोई डिफिकल्टी हो रहा है। तो दे आर मॉनिटरिंग बोथ द पैरामीटर्स एट द सेम टाइम। वंस the phase 2 is over, they are confirmed कि अगर यहाँ पे सब ठीक है, like that time they will go for a phase 3। तो phase 3 में वो करते हैं स्टैंडर्ड ड्रग वाइज, नॉर्मल उनका जो ड्रग के ऊपर मॉइटी के ऊपर रिसर्च चल रहा है अगेंस्ट दैट मॉइटी। तो यहाँ पे कंपैरिजन भी होगा, अगेन जो यहाँ पे सेफ्टी एफिकेसी देखा है वो भी यहाँ पे अगेन रीचेक होगा। और जैसे यहाँ पे 100 to 300 पेशेंट थे वो एक ही ग्रुप के होंगे। समझो डायबिटीज के ऊपर अभी रिसर्च चल रहा है, कोई नया ड्रग मतलब वहां पे रिसर्च चल रहा है, इन्वेंट कर रहे हैं वो। तो यहाँ पे सारे पेशेंट 100 to 300 पेशेंट ऑल आर फ्रॉम द डायबिटिक ग्रुप, बट इन द फेज 3 दे आर इन्वॉल्व द रैंडमाइज ट्रायल यहाँ पे कंडक्ट होता है। रैंडमाइज मीन्स डाइवर्स पॉपुलेशन पे यहाँ पे टेस्टिंग कंडक्ट किया जाता है। मीन स्पेसिफिक पॉपुलेशन वहां पे नहीं होता है या स्पेसिफिक डिसीज कंडीशन से ही सारे लोग नहीं रहते। रैंडमली दे आर चूजिंग द वॉलंटियर्स और पेशेंट एंड
उनके ऊपर ये स्टडी चलता है और इट में हैपन अप टू द सेवरल मंथ्स टू ईयर ये स्टडी कंडक्ट किया जाता है. देन वंस दे गॉट द रिजल्ट फ्रॉम द फेज 3 दे विल गो फॉर अ फेज 4 दैट इज अ पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस. और पोस्ट मार्केटिंग मीन्स यहाँ पे हमारे पास जो ड्रग मार्केट में अवेलेबल हो रहा है, राइट, सो पेशेंट आर परचेसिंग द ड्रग, राइट, एंड उसके ऊपर स्टडी कंडक्ट किया जाता है. वंस कि जब तक वो ड्रग मार्केट में अवेलेबल है वो बैन करके डिस्कार्ड नहीं किया जाता है, तब तक ये फेज कंटिन्यूअसली रन होते रहता है. सो इन दिस फेज spatial population also involved. Same time they are detecting rare as well as long term adverse effect, right. spatial population में अभी कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन है, चिल्ड्रंस है, इन्फेंट्स है, राइट, देन नियोनेट्स है, देन ऑल्सो एल्डरली पीपल है, राइट. वो सारे ही ये स्पेशल पॉपुलेशन में इन्वॉल्व होंगे, ना कि ये स्पेशल पॉपुलेशन ये फेज 1-2 में इन्वॉल्व नहीं रहते हैं. सो दिस इज अबाउट द क्लिनिकल ट्रायल का फेज. और यहाँ पे जो है एडीएमई है, डोज रूट सिलेक्शन का है, तो यहाँ पे आई वांट टू ऐड वन मोर पॉइंट. ये जो है ये बेसिक रिसर्च इससे भी पहले एक रहता है कि किस डिसीज के लिए हमें ड्रग इन्वेंट करना है, और वो ड्रग की मतलब बेसिक केमिकल कंपोजिशन क्या है, इफेक्ट्स क्या है, सॉल्युबिलिटी कैसे है, वो सारा एक बेसिक रिसर्च होने के बाद दे आर गोइंग फॉर अ प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट. देन स्टेप बाय स्टेप they are going for a clinical trial, then regulatory waiting for a regulatory authority approval, and lastly the further they are checking for the drug in a surveillance. So this is about the ड्रग डेवलपमेंट का फेज, कि यहाँ पे हमारा ड्रग जो है डेवलप हो गया है, अभी मार्केट में आ गया है. सो यहाँ पे पीवी इज द स्टार्ट. सो बेसिकली अभी जो फर्स्ट हमारा था प्री क्लिनिकल फेज दैट इज द एनिमल मॉडल टेस्टिंग, और उसके बाद था क्लिनिकल ट्रायल दैट इज द फेज 1, 2 एंड 3. तो यहाँ तक जो है क्लिनिकल ट्रायल टीम जो है रिसर्च करती है, उनके साथ में बहुत सारी एथिक्स कमेटी, रिसर्च जो लोग करते हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं. एंड आफ्टर दैट दे आर एनालाइजिंग, they are studying over that drug and they submitted result to the PV team. और यहाँ पे PV टीम का रोल जो है स्टार्ट होता है. So what is PV? PV is the science of monitoring the safety of medicine after they are released onto the market. So once the drug is launched in the market, वहां से PV जो है स्टार्ट होता है. So how is the PV help us? PV identify and report the side effect of drug. It will make sure कि it is safe for everyone, every gender and health population. Same time it protect the patient and improve the public health by curing the disease, by treating the disease. Like जैसे हम मेडिसिन ट्रीटमेंट के लिए लेते हैं, तो they will ensure कि every medicine is safe for us. So why PV is important now? Because हम जो है पीवी के वजह से जो है साइड इफेक्ट्स जो है, एडीआर जो है, एडवर्स इवेंट जो है वो एनालाइज करते हैं, उसके ऊपर काम होता है, राइट. यहाँ पे हम इंश्योर करते हैं कि मेडिसिन आर सेफ फॉर द एवरीवन. ऑल्सो जो कुछ लॉन्ग टर्म रेयर साइड इफेक्ट्स है वो भी एनालाइज होते हैं, राइट. एंड ये ड्रग सेफ्टी उसमें मेनली इन्वॉल्व होता है कि एफिकेसी एंड सेफ्टी जो हमने अभी देखा, दे विल इंश्योर कि यहाँ पे ड्रग जो है इफेक्टिव रहे एज वेल एज सेफ भी रहे. सो दैट्स वाई पीवी इज इम्पोर्टेंट. नाउ व्हाई रिपोर्टिंग इज इम्पोर्टेंट? बिकॉज अगर रिपोर्टिंग ही नहीं होता है तो वी डोंट नो अबाउट द सेकेंड साइड ऑफ द ड्रग. इफिकेसी जो है हमें पता चल रहा है, बट समझो थाउजेंड्स लोग वो ड्रग को रिसीव कर रहे हैं और 1000 में से 100 लोगों को भी अगर प्रॉब्लम हो रही है और वो रिपोर्टिंग नहीं होता है, राइट, तो वो जो है उसके ऊपर एनालिसिस नहीं होगा. सो दैट्स व्हाई रिपोर्टिंग इज इम्पोर्टेंट. So now who are involved in this process? So firstly the doctor, nurse जो है कि फर्स्ट टाइम पे ही जो नोटिस करते हैं कि दीज आर दी एडवर्स इफेक्ट या दीज आर दी साइड इफेक्ट्स.
Again, pharmacist, because they have the knowledge about the medicines and mechanism of action, right? Again, pharmaceutical companies, pharmaceutical industry, because they have the norm कि जो उनके मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स है उनके ऊपर कुछ भी अगर एडीआर या एई रहते हैं तो उन्हें डायरेक्टली रेगुलेटरी अथॉरिटीज को रिपोर्ट करना ही है. अगेन, रेगुलेटरी अथॉरिटीज लाइक एफडीए है, ईएमए है, सिडेस्को है, they can directly report to the pharma companies कि these are the ADR due to this drug. And patient, like patient अगर कोई ड्रग रिसीव कर रहे हैं तो they can directly report to the regulatory authority, even pharma companies, या जो भी कंट्री वाइज जो प्रोसीजर है वो फॉलो करके हम कंप्लेंट हमारा रजिस्टर कर सकते हैं. सो these are about कि जो लोग हमारी पीवी में इन्वॉल्व है. नाउ दिस इज द ग्राफ. ये ग्राफ हमें शो कर रहा है कि फ्रॉम 2015 टू 2024 तक जॉब अपॉर्चुनिटी एज वेल एज अवेयरनेस जो है हमारी पीवी सेक्टर में वो कैसे ग्रो हो रहा है. सबको स्लाइड दिख रहा है, विजिबल है? Yes, ma'am. Is it visible? ओके. वॉइस क्लियर है? ब्रेक हो रहा है? कुछ इश्यू है? No, ma'am. Okay, so this graph is showing both the parameters like job opportunities and awareness. See here, in a 2015 to 2017 जो है slowly grow हो रहा है, include both parameter parallelly, job opportunity as well as awareness जो है हमारे इंडिया में स्लोली यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था ग्राफ. बट वंस यू सी कि 2018 टू 2022 सडनली यहाँ पे चेंज जो है, अपवर्ड ट्रेंड जो है यहाँ पे हमें पता चल रहा है. एंड आफ्टर दैट 2022 टू 2024 ये जो ग्राफ है पैरेलली ग्रो हो रहा है बोथ पैरामीटर्स के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटी एज वेल एज अवेयरनेस के लिए. बिकॉज अभी जो है पीवीपीआई जो आपने सुना होगा, फार्माकोविजिलेंस जो डिपार्टमेंट इन इंडिया, राइट, वो जो है इंटरेस्टिंगली दे आर रिक्रूटिंग, क्रिएटिंग द जॉब अपॉर्चुनिटीज, और बहुत सारे सर्वेज हैं, बहुत सारे सेमिनार्स जो है हमारे इंडिया में गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर काम कर रहा है कि लोगों में अवेयरनेस बढ़े. सेम टाइम ये सारी सेक्टर्स में दे आर क्रिएटिंग मोर पोजीशंस कि लोगों को इस सेक्टर में हमें जॉब मिले. सो ये हमें यहाँ पे ग्रोथ वो पता चल रही है ड्यू टू दिस फैक्टर. सो नेक्स्ट इज द व्हाई फार्माकोविजिलेंस इज इम्पोर्टेंट. क्या लगता है आप लोगों को कि अभी हमने इतनी सारी टेस्टिंग की है, प्री क्लिनिकल टेस्टिंग है, देन क्लिनिकल टेस्टिंग दैट इज अ ह्यूमन टेस्टिंग भी हुई है, स्टिल देयर इज अ नीड फॉर अ पीवी? एनीवन? हाँ, कोई बोल रहा था. No, ma'am. Continue करें. सी, हमने जो देखा है क्लिनिकल ट्रायल में जो है स्पेसिफिक पॉपुलेशन इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, राइट. अगेन वो सारी स्टडीज जो है एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए रहेगी. वहां पे जो है एक कंट्रोल एनवायरनमेंट रहेगा, जैसे कि अगर हाइपरटेंशन ड्रग हम रेफरेंस की पीडीएफ में रुक जाना, एक पेज पे आ रही है. यस, हमने देखा है कि फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3 सारे ही फेजेस में एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया था, वहां पे हमें प्रोटोकॉल फॉलो करना था. अगेन वहां पे फ्रॉम फ्यू मंथ्स टू अप टू ईयर, राइट, एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए वो स्टडी था.
Again, we are involved or we are using the patient or volunteer from specific condition, right? कि अगर डायबिटीज के ऊपर हमारा रिसर्च चल रहा है तो ओनली डायबिटिक पेशेंट्स आर इन्वॉल्व. समझो, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इफ वी आर testing in a trial, so that time only hypertensive or cardiac patients are only involved, right? तो वहां पे जो है हमें कंटिन्यूस मॉनिटरिंग नहीं मिल रहा था. अगेन फ्यू साइड इफेक्ट्स और फ्यू एडीआर्स आर ऑल्सो देयर कि वो जो लॉन्ग टाइम या जब रेयर सिचुएशन है तभी वो आइडेंटिफाई हो गए, ट्रायल के दौरान वो पता नहीं चल सकते. सो दैट्स व्हाई पीवी इज इम्पोर्टेंट कि अगर कोई पेशेंट लॉन्ग टर्म कोई ट्रीटमेंट लेता है उसके बाद अगर वो ए जो है एनालिसिस होते हैं तो वाया पीवी वी कैन रिपोर्ट दैट ए टू द फार्मा कंपनीज and they will work over that. So that's why PV is important. Now, next question is how all these reports or all these cases are, कहाँ से ये डेटा कलेक्ट होता है कि हाउ दे आर आइडेंटिफाइड कि दीज आर दी कंप्लेंट्स फ्रॉम द पेशेंट्स. सो देर आर वेरियस सोर्सेस कि जहाँ से हमें ये डेटा मिलता है. फर्स्ट इज द स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग. मीन्स स्पॉन्टेनियस मीन्स यहाँ पे कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं करना है. मतलब हम तुरंत ही या स्पॉन्टेनियसली ही किसी कंप्लेंट के बारे में मैन्युफैक्चरर जो है या रेगुलेटरी अथॉरिटीज है या पीवीपीआई है उनको हम डायरेक्टली कंप्लेंट रिपोर्ट कर सकते हैं अपना वाया फॉलोइंग द प्रोसीजर. जो भी हमारे सिडेस्को ने एक प्रोटोकॉल बनाया है कि वाया फोन, वाया सबमिटिंग द फॉर्म, और यू कैन nowadays you can WhatsApp also. So spontaneously any doctor, any pharmacist, any nurse, patient their relative, they can report that side effect. First method is the spontaneous कि जहां से हमें डेटा मिलेगा. नेक्स्ट इज द क्लिनिकल ट्रायल. जो क्लिनिकल ट्रायल टीम है, जो एथिक्स कमेटी है, रिसर्चर्स है, जो हमें डेटा सबमिट करते हैं, राइट, जो ट्रायल्स का, वहां से हमें सारा इंफॉर्मेशन मिलता है, एनालिसिस मिलता है और उसके ऊपर आगे काम होता है. नेक्स्ट इज पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस कि जैसे ही ड्रग मार्केट में अवेलेबल होता है, राइट, और एनी पेशेंट, एनी ऑर्गेनाइजेशन उसके बारे में रिपोर्ट करता है, देन वी विल गेट द इंफॉर्मेशन, वी विल गेट द कंप्लेंट अबाउट दैट ड्रग, राइट. नेक्स्ट इज मेडिकल लिटरेचर. मेडिकल लिटरेचर क्या होता है? सम रिसर्च ऐसे होते हैं कि जो सम साइंटिफिक जर्नल्स है, आर्टिकल्स है, वहीं पे पब्लिश होते हैं और उस जर्नल्स लिटरेचर से, आर्टिकल से इन्फो कलेक्ट होता है कि ओके दिस ड्रग इज कॉजिंग दिस एडीआर, दिस ड्रग इज कॉजिंग दिस साइड इफेक्ट. उसके लिए एक स्पेसिफिक टीम बना रहता है कि जो कंप्लेंट्स है वहां से गैदर करते हैं और पीवी टीम को ट्रांसफर करते हैं. दैट इज द मेडिकल लिटरेचर. Then next is the regulatory authority report. Regulatory authority, हर एक कंट्री की अपनी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है. वो रेगुलेटरी अथॉरिटी भी पीवी टीम को डायरेक्टली रिपोर्ट कर सकते हैं कि these are the complaints of this drug, these are the reports about this specific medicine. So these are the various source कि जहां से हमें complaints जो है, रिपोर्ट जो है, मिल सकते हैं. Now next is interesting and एक्साइटिंग टॉपिक की करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है पीवी में. फर्स्ट इज द फार्मास्यूटिकल कंपनी, फार्मा इंडस्ट्री, वेरियस अदर कंपनीज है, इंडियन है, फॉरेन कंपनीज है कि जहाँ पे उनका इंडिविजुअल एक पीवी डिपार्टमेंट रहता है, उसके अंदर हमें फार्मा जॉब्स मिल सकती है, जैसे कि डॉक्टर रेड्डी है, एमजिन है, रॉश है, बहुत सारी कंपनीज है. अगेन various other hospitals, government aided hospital, trustee hospitals are there कि जहाँ पे उनका एक पीवी डिपार्टमेंट होता है, उनके ही यहाँ जो पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए आते हैं उनका ही डेटा कलेक्ट करती है वो पीवी टीम, राइट. एक टीम वहाँ पे डेटा कलेक्शन के लिए रहती है एंड दे आर कलेक्टिंग दैट रिपोर्ट्स एंड ट्रांसफर टू द पीवी टीम. देन नेक्स्ट, मतलब ज्यादा अमाउंट पे जहाँ पे जॉब मिलते हैं, दैट इज द सॉफ्टवेयर कंपनीज है, लाइक टीसीएस है, कॉग्निजेंट है, रॉश है, नोवार्टिस है. बहुत सारी ऐसी कंपनीज है कि जहाँ पे हमें पीवी डिपार्टमेंट में जॉब मिल सकते हैं. एंड
नेक्स्ट इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट बॉडीज। अभी ये जो सारे सेक्टर्स हुए ये सारे प्राइवेट सेक्टर्स आर देयर, बट दिस इज द गवर्नमेंट सेक्टर। मैंने जैसे बोला जब हम ग्राफ का देख रहे थे कि गवर्नमेंट ने काफी इसमें इंटरेस्ट शो किया है, एंड ड्यू टू विच हमारे कंट्री में जो है पीवी का अवेयरनेस एज वेल एज जॉब अपॉर्चुनिटीज अभी पहले से ज्यादा बढ़ गई है। समझो किसी चीज के लिए यहाँ पे पोजीशंस क्रिएट होती है तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये जो है जॉब पोस्टिंग रहती है, उसके लिए क्राइटेरिया रहता है। समटाइम्स उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम इज आल्सो देयर। इफ यू आर क्वालिफाइंग दैट एग्जाम देन यू विल बी सिलेक्टेड एंड यू विल बी ज्वाइन इन दैट डिपार्टमेंट। सो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स कि आप जहाँ पे आपकी पीवी की करियर स्टार्ट कर सकते हो। देन नेक्स्ट इज द करियर पाथवे कैसा है, ये जो लैडर है ये कैसा रहेगा कि आपकी पोजीशंस या रोल आपको कैसे मिल सकता है। सो मोर और लेस इंडस्ट्री हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, हॉस्पिटल हो, नेम खाली डिफरेंट हो सकता है बट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मोर और ओवर सेम ही रहता है। Some consider if you are joining as a fresher or trainee in any organization or industry or any pharma company, then you will get the position as a trainee junior data analyst or sometime junior data analyst का position also. It requires 0 to 1 year का experience. Then once you have experience, like आपको 1 to 3 year का experience आ गया है, then that time drug safety associate का position you will get. And what are the role as a drug analyst, PV associate और as a drug safety scientist का रोल आपको मिल सकता है। अभी यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस लेवल जो है समझो 3 to 6 ईयर हुआ है, तो इन दिस पोजीशन आपका सैलरी जो है करंट मतलब जो सैलरी पे आपने ज्वाइन किया है यहाँ पे टीम लीड का पोजीशन मिलता है एंड आपका सैलरी जो है वो डबल हो जाता है, और सीनियर पीवी एसोसिएट का लेवल पोजीशन आपको मिल सकता है। वंस द सीनियर पीवी एसोसिएट का लेवल आपने पार कर दिया देन पीवी मैनेजरियल पोजीशन इज देयर। इट रिक्वायर्स 6 to 10 ईयर का एक्सपीरियंस एंड एसोसिएट मैनेजर समटाइम ड्रग सेफ्टी मैनेजर का रोल वहां पे होता है। वंस द पीवी मैनेजर का रोल हो गया है उसके बाद सीनियर मैनेजर पोजीशन इज देयर। यहाँ पे टीम मैनेजर, ग्रुप लीडर, फंक्शन हेड दैट इज सेफ्टी फिजिशियन, फंक्शन हेड दैट इज एसएमई। एसएमई मीन्स सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। अगर किसी टेक्निकली या कुछ स्पेसिफिक टीम है कि जिसको वही लोग लीड करते हैं, वो उस स्किल में या उस टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट है, उन लोगों को बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। तो ये भी एक रोल रहता है और इट रिक्वायर 10 to 15 ईयर का एक्सपीरियंस। और टॉप मोस्ट पोजीशन इट इज द डायरेक्टर और हेड ऑफ पीवी। इट रिक्वायर 15+ ईयर एक्सपीरियंस और इस लेवल के लिए लोग अप टू 50 लाख पैकेज का सैलरी ईयर में लेते हैं। सो वंस यू स्टार्ट विद द फ्रेशर और ट्रेनी का पोजीशन एंड आप कंटिन्यूअसली खुद को ग्रो करते हो, नॉलेज एंड स्किल्स एक्वायर करते हो, तो आप लोग सीनियर मैनेजर, पीवी मैनेजर के पोजीशन तक आप रीच कर सकते हो। सो दिस इज अबाउट दी करियर लेडर जो हमारा पीवी में है। नाउ व्हाई पीवी नाउडे इज मतलब डिमांडिंग क्यों है, हाई डिमांडिंग क्यों है? बिकॉज वेरियस फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, बायोटेक फर्म्स है, आईटी कंपनीज है जहाँ पे रिसर्च आर गोइंग ऑन, राइट। सेम टाइम रिसर्च आ रहे, तो मैंने जैसे बोला कि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ड्रग को हमें सेफ तरीके से एवरीवन इनको इंश्योर करना है कि दिस इज सेफ फॉर एवरीवन। सो सेम टाइम पीवी भी इतना इम्पोर्टेंट है, राइट। तो वो सब के लिए फार्मा कंपनीज जो है, सीआरओज है, हाई डिमांडिंग है कि जहाँ पे जो लोग वेल क्वालिफाइड है, वेल ट्रेन्ड है, जिनको इंडस्ट्रियल नॉलेज है, उनको वो एक्वायर करते हैं। नॉट ओनली थेरोटिकल बट जहाँ पे उनको मतलब इंडस्ट्री एक्सपर्ट रेडीनेस चाहिए कि जो लोग इजीली वो वर्क को समझ सकते हैं एंड डे टू डे वर्क में वो लोग स्टार्ट कर सकते हैं। सो दैट्स वाई ये ट्रेनिंग हम ले रहे हैं कि ये जो थेरोटिकल नॉलेज है और इंडस्ट्रियल नॉलेज है, ये जो गैप है, ये जो ब्रिज है, ये हम कनेक्ट करना चाहते हैं।
So these are the वेरियस अदर कंपनीज है, सेक्टर वाइज यहाँ पे मैंने डिस्टिंग्विश की है कि यहाँ पे हम अपनी करियर की स्टार्ट कर सकते हैं. फ्रेशर एज वेल एज एक्सपीरियंस पीपल आर जॉइन हियर एंड दे कैन स्टार्ट देयर जर्नी. और हम अपना करियर जो स्टार्ट करके हमें खुद को ग्रो कर सकते हैं. और पीवी ऐसा फील्ड है कि जैसे आप मतलब आप अपने लिए ही काम नहीं कर रहे हो, बट सेम टाइम हम हमारी ड्रग सेफ्टी के लिए भी काम कर रहे हैं. इवन अगर सिंगल पेशेंट केस हम फॉलो करते हैं, प्रोटोकॉल से सबमिट करते हैं, तो वी आर सेविंग अ लाइफ ऑफ अ पेशेंट, राइट. सो एवरी डे मोर देन 10 केसेस 15 केसेस हम प्रोसेस करते हैं. तो यू कैन सी कि आप हमारी करियर एज वेल एज ड्रग सेफ्टी के लिए भी कितना अच्छा काम वाया पीवी हम कर सकते हैं. सो यस कि nowadays PV is demanding, right. जैसे मैंने बोला एवरीडे न्यू ड्रग इज कमिंग, सो सेम टाइम पीवी भी वहां पे पैरेलली हो रहा है. सो ओनली थिंग इज कि यहाँ पे जो हमें वेल क्वालिफाइड एक्सपर्ट रिक्वायर्ड है, राइट. जैसे जो लोग स्किल्स है, जो लोग अभी हमारा जो सब काम है जो सॉफ्टवेयर पे होता है, सो अगर उसके बारे में हम नॉलेज हो तो हम इजीली वो ग्रास्प करके काम जो है स्टार्ट कर सकते हैं. और इवन कंपनी भी अगर जस्ट बी फार्मा एम फार्मा पीपल देखे और जो लोग स्किल्ड है, जो प्रोफेशनली ट्रेंड है, उनको देखेंगे तो ऑब्वियसली प्रोफेशनली ग्रोन पीपल है उनको ही जॉब के लिए पहले प्रेफरेंस करेंगे, राइट. और जो जॉब्स भी है, स्टेबल जॉब्स है, डेस्क जॉब है, इवन इंश्योरिटी है, और सेम टाइम अच्छा पैकेज है. सेम टाइम जो हमने जो करियर ग्राफ देखा, करियर हमारा लेडर देखा, उसमें हमने देखा कि अगर हम खुद को नॉलेज परस्यू करते हैं, स्किल्स हम खुद को एक्सपर्टीज लाते हैं, तो हम अच्छा ग्रो कर सकते हैं प्रोफेशनली भी. और सैलरी हाइक्स भी जो है वो भी अच्छे हैं. सो दैट्स व्हाई नाउ डे पीवी इज डिमांडिंग. एंड सब लोग जो है पीवी को जो जॉब भी अच्छे मिल रहे हैं एंड सेम टाइम डिमांडिंग एज वेल एज स्टूडेंट भी उसके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं. सो दिस इज द समरी कि जो आज के सेमिनार में हमने स्टडी किया कि एई क्या है, एसएई क्या है, डिफरेंस क्या है एडीआर एई में, ड्रग डेवलपमेंट के कैसे फेजेस है, क्लिनिकल ट्रायल फेज टू फेज हमने देखा, देन पीवी इंपॉर्टेंट क्यों है, रिपोर्टिंग कैसे होता है, करियर अपॉर्चुनिटीज के प्लेटफॉर्म क्या क्या है, और कैसे ग्रो कर सकते हो आप. तो दिस इज अबाउट दी समरी कि जो हमने देखा. एंड यस, जो हमारा मैप पीवी कंसल्टेंसी है, उसमें हम नॉट ओनली थेरोटिकल बट ऑल हम प्रैक्टिकली भी ट्रेन करेंगे. रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड एक्सपीरियंस है, उसमें हम असाइनमेंट्स लेंगे, डेमोज लेंगे, केस स्टडीज करेंगे. देन अगेन वेरियस पोजीशंस है, उसके लिए कैसे इंटरव्यू प्रिपेयर करना है, लाइक जॉब पोस्टिंग्स है वो भी हम बताएंगे. सो दिस इज अबाउट अवर कंसल्टेंसी कि हम क्या क्या आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, करने वाले हैं. So yes, I will conclude here. When we conclude here with the thought, when we share what we know, we empower others to grow. So I hope आपको ये सेमिनार यूजफुल फ्रूटफुल लगा हो एंड पीवी के लिए आपको अच्छा आइडिया मिला हो यहाँ पे. एंड दिस आर द कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यू कैन कॉन्टैक्ट मी वाया दिस नंबर और मेल आईडी फॉर दी फर्दर नॉलेज. और आपको अगर पीवी के बारे में मोर डिटेल में अगर कुछ जानना है तो आप इसके द्वारा मुझे कांटेक्ट कर सकते हो. सो दिस इज अबाउट दी टुडेज सेमिनार. अगर अभी किसी को डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, तो यू कैन आस्क. आई होप आपको थोड़ा ब्रीफ एक आइडिया मिला हो पीवी के बारे में. एनीवन हैविंग एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? ये स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप माइक ओपन कर सकते हैं या फिर आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं मैसेज. अगर किसी को कुछ डाउट नहीं है तो वी कैन कंक्लूड हियर.
We will end the call. Yes, students, any have doubts? Anyone having any doubt, any confusion? जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में पूछना है, जॉब रोल्स कैसे होते पूछना है, कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अगर किसी स्टूडेंट्स को कुछ पूछना है तो आप रेज हैंड कर सकते हैं आप। Yes, ma'am. Yes, एडिशनली कोर्स नीडेड है बिकॉज सी हम लोग जो एकेडमिकली सीखते हैं वो हम सिर्फ थ्योरेटिकल सीखते हैं, राइट। और ये हमारा जो काम होता है ये पूरा ही सॉफ्टवेयर पे होता है। सो आपको ये पता होना चाहिए कोडिंग कैसे होता है, नरेटिव कैसे लिखा जाता है, रिपोर्ट कैसे पढ़ते हैं। तो ये कोर्स में आप लोगों को सब सिखाया जाएगा कि हाउ टू रीड द रिपोर्ट। रिपोर्ट अभी हमने बहुत सारे सोर्सेज देखे, लाइक स्पॉन्टेनियस है, क्लिनिकल है, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस है। वो भी हमें समझना पड़ेगा कि ये किस टाइप का रिपोर्ट है। अगर क्लिनिकल रिपोर्ट है तो क्लिनिकल रिपोर्ट कोड करने के लिए या जो इंफॉर्मेशन हम सॉफ्टवेयर में डालेंगे उसका अलग प्रोसीजर है। स्पॉन्टेनियस है तो उसका अलग प्रोसीजर है। तो ये भी सारा हमें समझना पड़ेगा कि रिपोर्ट आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, पेशेंट इन्फो जो है वो कैसे रीड करते हैं, और रिपोर्ट में जो सारा इन्फो आता है सारा का सारा इन्फो हम कोड नहीं करते हैं। जितना इंफॉर्मेशन रेगुलेटरी पर्पस से इंपॉर्टेंट है और जितना इंफॉर्मेशन कोड होता है उतना ही हम नरेटिव में या हमारे रिपोर्ट में इन्वॉल्व करेंगे। सो ये समझना जरूरी है कोडिंग कैसे होता है। देन बहुत सारी कंट्री वाइज वहाँ पे रेगुलेशंस होती है, मैनुअल्स होते हैं, एसओपीस होते हैं। तो वो अंडरस्टैंड करना जरूरी है। हमारी जो फर्स्ट स्टेप है जूनियर डेटा एनालिस्ट और ट्रेनी डेटा एनालिस्ट के लिए, वो समझना जरूरी है और ये सारा कोर्स में इंक्लूड रहता है। सो उसके लिए यस, आई विल से कि यस, कोर्स इज यूजफुल, कोर्स इज इम्पोर्टेंट। बेस्ड ऑन द थ्योरेटिकल नॉलेज हम प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में बताएंगे। आप जो अभी सीख रहे हो ये एक बेस है। लाइक जहाँ पे भी अब आप पीवी के लिए अप्लाई करोगे तो वहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है कि आप एटलीस्ट एम फार्म हो, बी फार्म हो, बट बी फार्म इज कंपलसरी, मतलब डिग्री इज नीडेड, राइट। ये आपका एक बेस क्वालिफिकेशन हो गया है, बट इससे आपको एड ऑन करना है आपको करियर आपका स्टार्ट करने के लिए। इसके अलावा किसी को कुछ क्वेश्चन है, कोई पूछना चाहता है? No, Python and JS are we are not using that software। ये जो है ये इंजीनियरिंग वाले लोग यूज करते हैं। हमारे जो सॉफ्टवेयर्स रहते हैं, जो सपोज हम जिस क्लाइंट के लिए काम करते हैं, राइट, जैसे नोवाटिस हो गया, जीएसके हो गया, एमजेन हो गया, क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। वो हमारी कंपनीज में हमारे जो हमें लैपटॉप्स मिलते हैं या जैसे ऑफिस में हम मॉनिटर के ऊपर काम करते हैं वहां पे वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। और उसके बारे में हम जब नए रहते हैं तब वहां पे भी एक ट्रेनिंग फेज रहेगा ऑफिस में ज्वाइन होने के बाद। वहां पे वो सॉफ्टवेयर कैसे हैंडल करना है वो भी सिखाते हैं। बट अगर मोस्टली जो यूज करते हैं सारी कंपनीज में उसके बारे में अगर आपको ऑलरेडी ही पता हो तो आप उसके बारे में आपको दिक्कत नहीं होगा वहां जाके कि ये कैसे यूज करना है।
एडिशनल स्टडीज जो है मैं बोलूँगी एंट्रेंस एग्जाम तो वो जो मैंने बोला गवर्नमेंट सेक्टर जो है, अगर आपको उस सेक्टर में जाना है तो उनकी ऑफिशियल साइट्स पे लिखा रहता है कि किस पोजीशन के लिए पर्सनल इंटरव्यू है या कुछ एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, तो वहाँ वो इंफॉर्मेशन वहाँ पे आपको मिलेगा। अदरवाइज कंपनीज या इंडस्ट्रीज में या फार्मा कंपनीज में जा रहे हो, सॉफ्टवेयर कंपनीज में जा रहे हो, वहाँ तो एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है, लाइक आपका 1-on-1 इंटरव्यू होगा। अगर आप उसमें सिलेक्ट होते हो तो आगे की राउंड में आपका जो है टेक्निकल राउंड रहता है, जैसे आपको पीवी के बारे में पूछा जाएगा, जो भी क्वेश्चंस होते हैं। वंस यू सिलेक्टेड इन टेक्निकल राउंड देन यू विल गो फॉर द एचआर राउंड, कि एचआर डिपार्टमेंट से कोई रहेंगे वो आपका इंटरव्यू लेंगे, और आप ये सारे राउंड क्लियर करते हो तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिलेक्ट हो सकते हो। Yes, you can suggest some more course before we complete B.Pharm in helping future. Simultaneously भी along with the B.Pharm आप कर सकते हो। अगर आपका प्लान है कि B.Pharm के बाद तुरंत जॉब करना है, तो along with the job search भी आप कोर्स के लिए मतलब पैरेलली आप ये स्टडी कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि B.Pharm करने से पहले आपको कोर्स करके रखना है, ऐसा नहीं है। B.Pharm करने के बाद भी आप कर सकते हो, दिस इज योर चॉइस कि आप कैसा सोचते हो। और एल्स हम लोग अगर सोच रहे हैं कि मुझे M.Pharm की बात करना है, तो इट इज ऑल्सो गुड कि वो M.Pharm करके भी कोर्स करके सेम टाइम जॉब के लिए सर्च कर सकते हो। इंटर्नशिप प्रोग्राम फॉर फार्माकोविजिलेंस, हाँ अभी तो मेरा इंटर्नशिप के लिए मैंने स्टार्ट नहीं किया है, बट यस मैं उसी के लिए प्लान बना रही हूँ कि मैं मतलब जो भी कॉलेजेस है वहाँ से ये जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है उनके लिए मैं इंटर्नशिप करूँ, और फिर वो लोग जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं उनको मैं जॉब पोस्टिंग दूँ। बट यस मैं इतना श्योरिटी कर सकती हूँ कि मैं जहाँ पे भी मैंने जॉब किया है वहाँ पे मैं इंटरव्यू आपका अरेंज कर सकती हूँ, ये एक अश्योरिटी हो सकता है। बट यस अगेन इंटरव्यू अरेंज हुआ है इसका मतलब ये अश्योरिटी मैं नहीं दे सकती कि आपका सिलेक्शन उसमें होना ही है, बिकॉज वेरियस द डिफरेंट क्राइटेरियाज आर देयर। वो एचआर पे डिपेंड करता है कि वो लोग को रिक्वायरमेंट क्या है, कितने लोगों का रिक्वायरमेंट है। अगेन आप इंटरव्यू में कैसे क्रैक करते हो, कैसे फेस करते हो, कैसे कॉन्फिडेंस आप बताते हो, सो टोटली डिपेंड्स कि एचआर एंड जो इंटरव्यू पैनल है उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे है, डिपेंडिंग ऑन दैट सिलेक्शन जो है वो होता है। तो थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने इतना इंटरेस्ट से सुना एंड बी इन सच अटेंटिव ऑडियंस, एंड इतने सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में है, मतलब आप पीवी के लिए इंटरेस्टेड हो। थैंक यू सो मच। इसके अलावा किसी को कुछ पूछना है? ओके, so we will end here, we will stop here. And yes, thank you once again for being in such a attentive audience. And I look forward to seeing you in our training program, which we will start shortly. So all the best for upcoming exams and your career. Thank you. Thank you so much. So, okay, sir. Thank you, sir, for arranging this beautiful Yes, seminar. ma'am. Once again, thank you. So, shall I end the call, sir? Yes, ma'am. Any question from your side, students? Okay. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, everyone.